with my co-host Anjali Sinha, extend our warmest greetings on the behalf of the entire CIMP family. The much anticipated moment has finally arrived, and with immense elation and unbridled enthusiasm, we usher you into Udbhav 2025, the vibrant cultural soul of our institution, where artistry, tradition, and passion converge in a magnificent symphony of expression. Before we delve into today's program, we would like to share a glimpse into the heart of CIMP, envisioned by our esteemed Chief Minister Shri Nitish Kumar, who also serves as the Chairman of the Board of Governors. CIMP was established in 2008. Inspired by the legacy of the IIMs, this autonomous institute was born with the unwavering support of the Bihar government, aiming to reignite the state's educational prominence. CIMP's journey has been marked by continuous growth and recognition. Recently, we secured a coveted position among the top 125 management institutions in the nation according to the NIRF ranking 2023, conducted by the Ministry of Education. This signifies our 31st position among government B schools and a remarkable 6th position in the entire Eastern Zone. Additionally, CIMP has been recently distinguished with the AAA+ rating by Career 360, solidifying its position as a premier business school. Culture is the soul of any institution, and at Udbhav, we take pride in embracing diversity, creativity, and the power of artistic expression. Udbhav is not just an event, it is a celebration of art, heritage, and the vibrant spirit that defines our institution. It is where melodies find their rhythm, dance steps weave stories, and creativity knows no bounds. Today, we gather to witness an explosion of talent, passion, and culture brought to life by our incredible students. Now, with great honor and profound delight, I take this opportunity to introduce our esteemed chief guest for today's event, an individual whose distinguished presence is bound to inspire and elevate the spirit of this occasion. It is our privilege to introduce our chief guest, Mr. Sanjay Kumar Agrawal, Sir, IAS, Secretary of Agriculture with additional charge as Inquiry Commissioner and additional charge of Secretary of Transport Department role. Professor Dr. Rana Singh, Sir, Director CIMP. Professor Ranjit Tiwari, Sir, Associate Professor CIMP. Now I would request all the dignitaries to please come forward for the lamp lighting ceremony. At this moment, I invite Shruti to present a sampling to Mr. Sanjay Kumar Agrawal, Sir, as a symbol of our warm welcome and respect. Now, Anjali will be presenting a sapling to Professor Dr. Rana Singh, Sir. Now, Shruti will be presenting sapling to Professor Ranjit Tiwari, Sir. Moving ahead with the event, it's my privilege to invite Professor Dr. Rana Singh, Sir, Director CIMP, to grace the stage and deliver the welcome address. Honorable Chief Guest, Sanjay Sir, Secretary Agriculture and Transport, my esteemed colleague, Professor Tiwari, who is also the convener of Udbhav, our esteemed Chief Administrative Officer and CEO CIMP BIF, esteemed faculty colleagues, members of the staff, officers,
invited participants from various business schools of Patna and outside Patna, and my dear students of CIMP. It's indeed a delightful moment on my part to extend a very warm welcome to our honorable chief guest and our esteemed convener on the dais with a big round of applause. And also, I deem it my valued privilege to extend a warm welcome to all members of the dais with a big round of applause from our side. Honorable Chief Guest, sir, it's an absolute honor and delight to apprise you about some of the latest developments about CIMP since your last arrival. CIMP has been nominated as Lead Knowledge Institute by Niti Aayog, Government of India, which is one of the almost 20-25 institutions across the country. In UP, IIM Lucknow has been nominated as Niti Aayog, as the Lead Knowledge Institute of Niti Aayog, and the primary objective of Lead Knowledge Institute is to enable and to give a catalytic boost to the strategic planning process of Government of Bihar, particularly the Planning and Development Department. The country has started moving forward towards accomplishing the envisioned goals of Viksit Bharat 2047, and Niti Aayog has expected all these states to focus on preparing the strategic plan, and all these states are expected to prepare their respective strategic plans. Bihar is also working upon preparing the vision document and the strategic plan in the name of Viksit Bihar 2047. And we are delighted to apprise to you, sir, and to the entire August members present here, CIMP is supporting as Lead Knowledge Institute, and Udbhav, as the name suggests, it is Genesis. When we talk about Genesis, it's genesis of ideas, thoughts, views, strategies, action plans, and all of them are aimed towards transforming young, ignited minds from the business domain to become a world-class business management professional and to deliver results not just as a business manager, but as a change agent and also as a transformational agent in the society to bring about a radical change. I'm thankful to all members of CIMP, all the student members who have worked very sincerely, all the faculty colleagues, towards making this event a success. And let me also be delighted, have the privilege to apprise you that CIMP secured 4 stars as announced by Ministry of Education, Government of India, for its innovation contributions, which is the highest rating in the country. In Bihar and Jharkhand, CIMP got 4 stars for its activities in the domain of innovation. IIT Patna got 2 stars, and Bodh Gaya got 3.5 stars, and there were many others who joined the bandwagon. So let me thank all members of IIC Institute Innovation Council who made their valuable contributions. The 2-day event comprises series of events and activities in form of business plan competition, various other activities, business quiz, so as to harness the potential inside you to make sure you become a world-class business manager and also to become a great citizen to make our great country, great state, yet greater, and leave the planet for the generations to come a better place to live with our sincere efforts. Thank you very much. Wish you grand success in your events and have a wonderful time ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bihar. Thank you, sir, for your insightful words. Now, I have the distinct honor of inviting Mr. Sanjay Kumar Agrawal, sir, to step forward and address our STEAM gathering. Everyone, please give a big round of applause for him. Yeah, good morning, everyone. First of all, I would like to thank CIMP for inviting me for this annual occasion. I would like to thank Professor Rana Singh and his team for making this event memorable and eventful. Dear friends, when the invitation came to me,
through one of your colleague and then Professor Rana Singh, I couldn't resist myself from attending this program. Whenever I see any student, I find myself in that, and I want to contribute what I can. Friends, when you are a student, you always think when this life will be over, means life of a student. And let me tell you very frankly that this life is not going to be over any time. You have to learn, you have to learn, and you have to learn till you are in this world. I would like to narrate my example that till COVID time, I was thoroughly busy with all the duties, all the works which I was supposed to do. I didn't have any time to contribute to my educational life. But suddenly when the COVID came, thanks to lockdown and thanks to COVID, I think COVID was a bad memory in all our society. But COVID gave us so many lessons. Now people are very conscious to their health and many other things which life has changed after COVID. But for me, suddenly I have started learning new things. I have started fulfilling my unfulfilled dreams. And one of the dreams was continuing the learning graph. I have started going to various IIMs. Till now, I have attended 8 of the best IIMs in the country in last 3-4 years. From IIM Ahmedabad to IIM Kolkata to Bangalore to Indore to Lucknow, from XLRI to some of the London School of Economics. And every day, this hunger is going up and up. So that's why I want to say that your student life is not going to end any time if you want to grow. If you have seen a tree, if you have seen a plant, every day they need some type of water, some type of oxygen to grow. For every human being, you have to grow by learning. So now, because you are dedicated to learning, to education, so don't waste your time. There is a proverb, एक मूवी भी आई थी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. और ये जिंदगी सच्ची में नहीं मिलती है दोबारा. एक किसी ने ये भी कहा है, एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि कुछ ऐसी चीज़ बोलो जो तुम्हें लगे कि खुशी में बोलो तो दुख हो, दुख में बोलो तो खुशी हो. क्या बोला? It shall also pass. ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो अगर जिनको दुख लग रहा है कि अरे कब ये टाइम निकलेगा, तो for them this too will pass. और जिनको लग रहा है अरे यार अब 3 महीने बाद, कितने लोग MBA बनने वाले हैं? हाथ उठाइए. ये वक्त भी गुजर जाएगा. एंड बाद में रिग्रेट्स नहीं हो, इसके लिए यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम एंड यू विल रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ कि उस समय जो इन्वेस्टमेंट. अच्छा, कितने लोग यहाँ फाइनेंस लेकर काम कर रहे हैं? मतलब कितने का सब्जेक्ट फाइनेंस है? तो आप लोग इन्वेस्टमेंट सब समझते हैं. तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. और जो एफर्ट्स के बाद रिजल्ट्स मिलने हैं, यू कांट इमेजिन. अभी मैं आई वॉज टॉकिंग टू योर डायरेक्टर दैट ही टोल्ड मी दैट फ्रॉम जो पैकेजेस यहाँ अभी आपको कैंपस इंटरव्यू में मिल रहे हैं, इट वेरीज फ्रॉम 6 लाख to 20 लाख. और वो कहाँ से आता है, किसको मिलता है? आप ही में से कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता. एज ए एम्प्लॉयर हम लोग जब
ऑफिस देखते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर, व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉय वी वांट। एक ऐसा एम्प्लॉय हमें चाहिए जिसके पास एक वर्सेटाइल नॉलेज हो, जो काम को बर्डन नहीं समझता हो, जो काम को एंजॉय करता हो। हम में से 50% आप में से ज़रूर होंगे जो यू एंजॉय योर जॉब, यू एंजॉय योर वर्क, यू एंजॉय योर स्टडीज। और कुछ लोग करते हैं लेकिन यार कब यार ख़त्म होगा। तो हमें किस कैटेगरी में रहना है? देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आवर्स और हमें डिसाइड करना है। और जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनके पास टाइम है अभी। और MBA में फर्स्ट वर्ड इज़ मास्टर्स। फॉरेन कंट्रीज में मास्टर्स मीन्स ए वेल एजुकेटेड पर्सन, जिसको पूरी तरह अच्छी नॉलेज हो। हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग के पास ये प्रॉब्लम्स रही है कि हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। और अब की लाइफ में तो बच्चों को और भी डिफरेंट इश्यूज हैं। अच्छा, कितने लोग AI का यूज करते हैं? हाथ उठाएं। हाँ, आज सबसे बड़ी एसेट और सबसे बड़ी थ्रेट जो इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास को है वो AI है। मैं सिंगापुर गया था 15 साल पहले, USA गया था, सिंगापुर और USA। वहाँ के बच्चों को उस समय में नर्सरी स्कूल में हम लोग को ले जाया गया। सब बच्चों के पास में आईफोन था। यानी कि बच्चों को बचपन से ही उनके माइंड को कैप्चर कर दिया गया। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे 2 + 2, बच्चे लोग कैलकुलेटर मोबाइल पर ऑन करके 2 + 2 4। दिस इज़ लाइफ। हमारे बच्चों को 20 × 27, 27 × 27 टिप्स पर बता देंगे। तो धीरे धीरे हमारे जो IQs को कैप्चर करने की कोशिश फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने पहले कर लिया, अपने आप को बर्बाद कर लिया। हमारा इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास की डिमांड पूरे वर्ल्ड ओवर थी, लेकिन सडनली डिस्ट्रप्शन आप लोगों को पढ़ाया होगा, मार्केटिंग में पढ़ाया होगा, फाइनेंस में पढ़ाया, पूरा मैनेजमेंट इज हैंडलिंग डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रप्शंस। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी एजुकेशन में जो आ रहा है डायरेक्टर साहब, जो हमें फोकस भी करना, इन बच्चों को जानना चाहिए। आपको हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का आंसर 1 मिनट में, 1 मिनट तो बड़ी बात है, 20 सेकेंड्स में यू विल गेट ए गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउट ऑफ योर AI। लेकिन उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो नया सिलेक्शन मेथड या नई सिलेक्शन टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें आपको AI जनरेटेड रिपोर्ट देंगे, बोलेंगे इसमें फॉल्ट फाइंड करो बेटा। और AI मॉडल्स में ये देखा जा रहा है कि वो 2-4 ऐसे फॉल्ट्स उसमें डाल दे रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये AI जनरेटेड है या नहीं। अब ऐसे टूल्स आ गए हैं, जैसे पहले वाला टूल्स कौन सा आप लोग यूज करते थे प्लेगरिज्म का? टर्निटिन। टर्निटिन में पहले था कि अवेलेबल रिसोर्सेज से आपने अगर कुछ कॉपी किया तो टर्निटिन बताता था, लेकिन AI में तो अवेलेबल है ही नहीं। AI तो हर कंटेंट को जनरली न्यूली डिजाइन करता है। लेकिन अब टर्निटिन का जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है, जिसमें AI जनरेटेड जो भी कंटेंट्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन ये सब तो एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट्स की बात है। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे और अगर डे 1 से हम AI को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे, तो आपके पास में सडनली एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए ट्राई टू अवॉइड फुल यूज ऑफ AI। आपको AI से दूर नहीं रहना है, आई डोंट सजेस्ट, बट जुडिशियस यूज ऑफ AI इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज आपको रियल लाइफ में चैलेंजेस का AI के पास पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। आजकल कितने जोक्स आते हैं, मीम्स आते हैं कि सॉरी आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस। क्योंकि AI आपके लिए हेल्पिंग टूल में यूज होना चाहिए। मैं सबको बताना चाहूँ, फाइनेंस और मैनेजमेंट तो प्योर ह्यूमन ब्रेन है।
आप और हम तभी सक्सेसफुल हैं जब आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो चाचा चौधरी वाली कहावत आती थी ना, आपके ज़माने में नहीं है, हम लोग चाचा चौधरी कॉमिक्स पढ़ते थे, उसके नीचे लिखा हुआ रहता था चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उस ज़माने में 30 साल पहले। और अब आपका अगर दिमाग कंप्यूटर से तेज नहीं चलेगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आप एक नॉर्मल लाइफ तो जी ही सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर सपने देखे होंगे बड़े ऊपर जाने के। है किसी का सपना? अच्छा, आप लोगों के सपने कैसे? मैं जस्ट 2-3 ऑप्शंस देता हूँ। पहला सपना किसी एम्प्लॉय बनना, मतलब पहला जॉब लेना एज ए एम्प्लॉय। कितने लोग हैं? अरे इतना बड़ा कैंपस सिलेक्शन चल रहा है, सब तो उसमें जा रहे हैं। नहीं, पहला तो गवर्नमेंट जॉब कितने लोग चाह रहे हैं? 4 लोग। फिर प्राइवेट जॉब एज ए एम्प्लॉय, हाथ नहीं उठ रहे, लेकिन कैंपस इंटरव्यू में हम सब जा रहे हैं। थर्ड, कितने लोग स्टार्टअप्स ट्राई कर रहे हैं? फोर्थ, कितने लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस में हाथ डालना चाहते हैं? देखो, आजकल एक स्टार्टअप एक नया कॉन्सेप्ट बन करके आया है। स्टार्टअप मुझे भी अच्छा लगता था, मुझे भी लगता है, लेकिन स्टार्टअप का एक लिमिटेड स्कोप है। हम लोग सब लोग बहुत नया नहीं कर सकते, कुछ लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी, जिसको हम स्टार्टअप कई बार कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि दूसरों ने ये किया हुआ है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप्स पर को आपको नज़र डालनी होगी। दूसरा, आपको एम्प्लॉय बनना है या एम्प्लॉयर बनना है, ये डिबेट काफ़ी टाइम से चलती रही है। सब एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू बिकम सर्वेंट, दे ऑल वांट टू बिकम मास्टर्स, क्योंकि आपके नाम के साथ ही मास्टर्स लगा रहेगा, मास्टर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन उसके बनने के लिए आप में जो ट्रिक्स चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, वो इस इंस्टीट्यूट में मिलेगी 80% या 50%, मैं कहूँ 60%। 40% के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वो आपको बताना होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम लोग के इन बच्चों के कोर्स के साथ कोई अटैचमेंट होता है कुछ फील्ड में? इंटर्नशिप पार्ट ऑफ द सेमेस्टर से होता है, सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में अगर इनको कुछ फ्रीडम दे करके, यदि हम लोग कुछ बिजनेस के साथ, कुछ ऑफिसेस के साथ, जहाँ ये देखे कि लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने कभी सब्जी वाले को देखा है? कभी सब्जी खरीदी तो नहीं होगी, खरीदी ना, हॉस्टल में मिलता है। इसमें मेस कमेटी होती है इनकी। ओके, यहाँ आप लोग मीठापुर में है। मीठापुर में एक फेमस सब्जी मंडी है, किसने देखा? किसी दिन 6 घंटे वहाँ रहो, या 6 नहीं 12 घंटे रहो, तो आपको एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल दिखाई देगा। एक मार्केटिंग का जो मैनेजमेंट आपके टीचर्स बताते होंगे, उसका रियल डेमोस्ट्रेशन आपको एक सब्जी मार्केट में मिलेगा। सब्जी मार्केट के अलावा भी ऐसे कई मार्केट्स हैं यहाँ पर। आप लोग मॉल में गए होंगे, पीएनएम मॉल तो सब गया होगा। कभी पीएनएम मॉल की 10 शॉप्स को मॉर्निंग से इवनिंग तक ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल। कभी नाला रोड की फर्नीचर शॉप्स को लेकर किसी मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखिए, आपको पता चलेगा कि एक बिजनेस की रियल प्रॉब्लम्स क्या रहती है। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट 2 कैटेगरीज में जाना है तो ये सब काम नहीं करना है। जब आपको एम्प्लॉय बनना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट 2 कैटेगरीज में जाना, अगर स्टार्टअप में जाना है या अपना बिजनेस सेटअप करना है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें, तो आपको बिजनेस की ABCD आएगी, तभी आप M तक पहुँच पाएंगे। और बिजनेस इज़ ए डायनेमिक सब्जेक्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन लोग कहते हैं ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। जैसा देखेंगे, जैसा सीखेंगे।
तो प्लीज़ डू सम पार्ट टाइम, मतलब कभी भी लगे। और किसी पार्ट टाइम जॉब के साथ, फॉरेन कंट्रीज में कंपलसरी है आफ्टर 10th या 12th आपको किसी न किसी जगह पार्ट टाइम फ्रॉम बेरा, यानी वेटर्स भी बनते हैं स्टूडेंट्स वहाँ, जो अपने यहाँ के इंडिया में जाते हैं। आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाइएगा तो देखोगे 2 घंटे की जॉब करता है जाकर वो, और वो किसी ग्रोसरी शॉप में कहीं पर भी दे डू सम पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नॉलेज पर्पज। तो ये स्किल्स डेवलप करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर जाएं। आप लोग तो सभी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या बैंक्स में जाने का मौका मिला? यहाँ कितने लोग ने बैंक ब्रांच विजिट किया है? सब ने किया। बाकी यूपीआई पेमेंट्स सब ने किए। कभी मौका मिले सर से परमिशन ले करके किसी बैंक ब्रांच को, अभी मुझे बताया कि आईसीआईसी बैंक यहाँ का मेजर रिक्रूटर है, किसी दिन 1-2 दिन टाइम निकाल करके बैंक की फंक्शनिंग को देखें। मैं जब 12th में था तो उस समय नए नए बैंक्स खुलने शुरू हुए थे, आईसीआईसी, एचडीएफसी सबकी। तो हम लोग जा कर के बैंक्स में अकाउंट खुलवाते थे। फिर शेयर मार्केट शुरू हुआ, डीमैट अकाउंट्स आए डीमेटलाइज्ड फॉर्म में। अच्छा, आप लोग कितने लोगों के पास शेयर्स अकाउंट है, डीमैट अकाउंट? कुछ लोग के पास है। गुड। तो उसमें से जस्ट ट्राई समथिंग। देखो, लाइफ में जो आपको किताबें पढ़ाएंगी, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी है। किसी की लत नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो बैंक्स प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे लोन देते हैं उनके साथ रहिए, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर तक आप लोग सीख चुके होंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में सीखने की आदत पड़नी चाहिए। और उसके लिए जो भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में है, ट्राई टू डिवोट सम टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। आजकल मोबाइल ऐसा, मैंने फिर कहा, एआई और मोबाइल में हम लोग जितना टाइम वेस्ट करते हैं, वो नोइंगली अननोइंगली हम लोग कई चीज़ें उसमें अपने स्किल्स को वेस्ट करते जा रहे हैं। वो भी करना ज़रूरी है, इंजॉयमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। बट आपको अगर अच्छा एमबीए बनना, मतलब एमबीए कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा प्रोफेशनल बनना, एक अच्छे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनना, जब किसी इंटरव्यू को आप फेस करो तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस दिखाई देना चाहिए। जब भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम देखते हैं कि उस कैंडिडेट में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि जब भी आप जाओगे तो प्राइमरी क्वालिफिकेशन एमबीए रहेगी, तो जो भी अपीयर हो रहे हैं सब एमबीए हैं, ऑल आर इक्विवेलेंट। मतलब उसके बाद आप में क्या एक्स्ट्रा है? एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता और किसी के पास एक्स्ट्रा हो जाता तो क्या बन जाता वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देन आपको ये डिसाइड करना, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्या? लिटिल एक्स्ट्रा विल मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और किसी तरीके से कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका जो इंटरेस्ट लगे। पटना में है डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस सब हैं, लेकिन सब में आप इकोनॉमिक्स को ढूंढो कि उसमें इकोनॉमिक्स क्या है, रिक्शे वाले के क्या इकोनॉमिक्स है, ऑटो वाले के क्या इकोनॉमिक्स है। तब आप स्टार्टअप जब बनाओगे तो आपका स्टार्टअप एक प्रैक्टिकल स्टार्टअप बन पाएगा। अदरवाइज कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस बिना इकोनॉमिक्स के इट इज जीरो। जीरो भी नहीं है, डिजास्टर है। आप जैसे ओला उबर कॉन्सेप्ट आज आया, उसको ओला उबर कंपनी का पास सिवाय मोबाइल ऐप के कुछ भी नहीं है, नथिंग दे हैव। पूरे बिहार में उन्होंने 3 एम्प्लॉय रख रखे, ओनली 3 एम्प्लॉयज, और वो भी कहाँ हैं? यू कांट फाइंड देम। लेकिन उसने इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रखा है। तो जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इकोनॉमिक्स। कभी ओला उबर में बैठो तो ड्राइवर से ट्राई टू अंडरस्टैंड हीज इकोनॉमिक्स और हर इकोनॉमिक्स। आपको कहीं ना कहीं आपके पास में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, लगे कि भैया इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ से आई है। विदाउट इकोनॉमिक्स आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट, इनकम, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी स्टार्टअप टू ग्रो और एनी बिजनेस टू ग्रो। तो वो नॉलेज हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे इंडियन कल्चर में। यही सबसे अच्छी बात है
कि रिक्शा वाला, सब्जी वाले से लेकर ऑटो वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, सबके पास में एक अच्छी इकोनॉमिक्स है। आप लोगों में से कितने लोग एग्रीकल्चर, जिनके मतलब पेरेंटल एग्रीकल्चर्स अभी भी करते, कोई एग्रीकल्चर या फार्मिंग से हैं? कोई, एनीवन? कुछ लोग हैं। और बाकी लोग को आज एग्रीकल्चर सेटअप, चूँकि मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी हूँ, आज एक एग्रीकल्चर एक ऐसा स्टार्टअप वर्ल्ड है जो अनटैप्ड और अनटच्ड भी है अभी तक, जहाँ कुछ चीज़ों में प्रॉफिट परसेंटेज इज मोर देन 50%, लेकिन स्टिल हमारा यूथ उस एरिया को टच नहीं करना चाहता। अभी हम लोग ने एक युवा किसान, यूथ फार्मर की स्कीम पर वर्क कर रहे हैं कि हाउ टू कनेक्ट यूथ इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर ये बिजनेस, एग्री बिजनेस जिसे कहते हैं, तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन कमिंग इन द होल एग्रीकल्चर सेक्टर। कोई एक प्रोडक्ट आप ले लो, कोई एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लो, ट्राई टू कम आउट कि क्या क्या उसमें वैल्यू चेन एडिशन हो सकता है। कैसे लॉजिस्टिक, आप में से कुछ लोग, पता नहीं कोर्स है कि नहीं आपके यहाँ, लॉजिस्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। हाउ लॉजिस्टिक is bringing makhana from a farm to international market। तो ये सब जब आप स्टडी करोगे, अपने कॉमन एरिया को देखोगे, अपने आसपास में देखोगे, तो आपका एक व्यू पॉइंट बनेगा और एक एक्सपीरियंस सेक्टर आपको काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जो गलतियाँ हम सब ने की, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, हमें बताया गया कि बेटा मज़े करो, फिर ये टाइम ना आएगा दोबारा। ठीक है, तो वैसे ही कहा आपको भी कुछ लोग बताते रहोगे कि अरे ज़िंदगी भर तो काम ही करना है, अभी आराम करो, अभी मज़े करो, एंजॉय करो, फिर तो वही प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेकिन ये टाइम एंजॉयमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग का, और MBA इज़ नॉट ए डिग्री, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। MBA आजकल ऑनलाइन MBA जितने हैं कि आपकी कॉम्पिटेंसी आपको सक्सेस दिलाएगी। आपके पास में एक ब्रांड होगा, नो डाउट, CIMP की MBA डिग्री है, तो आप एक दूसरे ग्रुप में होंगे, लेकिन उस ग्रुप में भी अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन कॉम्पिटेंट आदमी उसमें कम ही है। कल परसों आप लोगों ने आकाश की तरफ देखा था, 3-4 दिन 5 दिन पहले कुछ हुआ था, किसने देखा था? क्या हुआ था? कुछ हुआ था, मुझे भी नहीं पता क्या क्या था, लेकिन हर आदमी आकाश की तरफ देख रहा था, लेकिन 3-4 तारे चमक रहे थे। तो 3-4 तारे यहाँ भी हैं। ट्राई टू मेक योर सेल्फ दैट तारा, जो आपको लोग देखे और तुरंत पहचान जाए कि ये कौन सा तारा है, और बड़े भैया आ जाओ मेरी कंपनी में आ जाओ। एक से एक यार, मतलब जो आप स्टार्टअप जिसको कह रहे हैं, एक से एक लड़के लड़कियों ने आज लाइफ में बड़े बड़े काम किए, और हमें टैलेंटेड, मैं खुद, हम लोग अभी PwC EY उनको कहते हैं यार हमें टैलेंटेड आदमी चाहिए, और 10 मिनट के अंदर वो बंदा आता है। जब हम लोग पता कर लेते कि एक आदमी है कि टैलेंटेड है, मतलब डिफरेंस करना बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे ही किसी ऑफिस में जाओगे, विद इन हाफ एन आवर दे विल जज यू, दे विल जज यू बाय योर अपीयरेंस, बाय योर परफॉर्मेंस, बाय योर नॉलेज, कि ये तीनों आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो डिग्री नहीं पूछेगा, MBA की डिग्री दिखाए यार कहाँ पर है, नहीं दिखाएगा। वो पूछेगा क्योंकि उसे पता है आप MBA हो। तो उसके बाद अगर आपको आगे जाना है तो थोड़ी सी मेहनत, और मैं फिर आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम। ट्राई टू गैदर सम एक्स्ट्रा नॉलेज, ट्राई टू गेट सम प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज is very difficult, very rare। वो कहते हैं it is not available anywhere। और last but not least that, try to come out from your comfort zone। ये comfort zone comfortable नहीं है, वो uncomfortable है। आपके मन में होता होगा कि मैं अभी ये करूं, लेकिन वो comfort zone आपको पकड़ लेता है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, रोज सब ने अच्छे, मेरे ख्याल से कई बच्चे
ये सोचते होंगे कि नहीं कल से तो पक्का एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और सुबह सुबह वो कंबल पकड़ करके कहता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, तो वो कंफर्ट जोन है। वैसे ही कंफर्ट जोन हमारी लाइफ में डिफरेंट कंफर्ट जोन्स हैं। किसी को इस माइक पर बोलने में अनकंफर्टेबल लगेगा, किसी को ग्रुप बनाने में अनकंफर्टेबल लगेगा, किसी को किसी अननोन पर्सन से बात करने में अनकंफर्टेबल लगेगा, किसी को बैंक में जाकर मैनेजर सर साहब से बोलना कि सर मैं एक दिन आपके साथ बैठ करके सीखना और समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन आप CIMP के ब्रांड के साथ जाएंगे तो हु विल डिनाई। मेरा ऑफिस पास में है, किसी दिन कुछ दिन तो गुजारो हमारे कृषि भवन में, 1-2 दिन करके आओ, हम लोग आपको ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग। तो इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर हो, कुछ भी अनकंफर्टेबल हो सकता है आपके लिए। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ अनकंफर्टेबल फॉर यू। वो हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है, फॉर एवरी पर्सन इट इज़ डिफरेंट। और जो भी है वो उससे बाहर आना पड़ता है। तो इसीलिए कहीं आपको लगे कि कुछ एक्सपीरियंस चाहिए किसी चीज़ का, मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट को 2-3 सेक्टर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो 1 डे इज़ सफिशिएंट। आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए 1 डे इज़ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स। कहीं जाओ, फाइंड आउट कि क्या प्लस है क्या माइनस है, कहाँ से फाइनेंस आता है कहाँ जाता है, कैसे फाइनेंस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे वो आदमी काम कर रहा है। कोई 10 रुपये के प्रॉफिट में काम कर रहा है, कोई 1 रुपये के प्रॉफिट में काम कर रहा है, कोई 1 लाख रुपये के प्रॉफिट में काम कर रहा है। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स जो उसको उसमें काम करने पर मजबूर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो वो एक्सपीरियंस गैदर करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और मेरी गुड विशेस आप सबके साथ है। और कभी भी किसी को लगे कि यू नीड सम हेल्प इन एनी रिगार्ड, तो आई एम योर नेक्स्ट डोर नेबर। मेरा ऑफिस देखा किसी ने? नहीं देखा? इस रोड के उस पार में कृषि भवन देखा है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है। बाई चांस आई एम हेडिंग दैट ऑफिस, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा है कुछ लोग कैंटीन का मज़ा लेते हैं हमारे यहाँ आकर के। कृषि भवन आया कुछ लोग? हाँ, मैंने देखा है, कुछ बच्चों को बैठे हुए देखा था कैंटीन में, पता चला कि CIMP के हैं, लॉ इंस्टीट्यूट्स के हैं, तो उसके आते रहते हैं बच्चे। लेकिन ट्राई टू कम। और कहीं पर भी, मैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है। ओह श्योर, अभी किसी को ड्राइविंग सीखनी है। अच्छा, कितने को ड्राइविंग आती है? हाथ उठाओ। आती है? अच्छा, कितने के पास में ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं? अच्छा, कितने के पास में नहीं है जो बनाना चाहते हो? तो चलो, आपके लिए जल्दी ही हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और आपके कैंपस में जगह भी है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, उससे आप लोग ड्राइविंग भी सीखो। देखो, ये सब स्किल्स है, पर्सनल स्किल्स हैं जो सबके पास होने ही चाहिए। मतलब इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं, और सबके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब इसमें इन लोग के लिए रोड सेफ्टी के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स को भेज दूंगा। इनके क्लासेस वाइज कुछ आप ही लोग को कुछ करना चाहिए, और इसके लिए भी कुछ हम लोग हेल्प कर देंगे आप लोग को, ताकि बच्चों को इन सोशल एक्टिविटीज़ से भी जोड़ना चाहिए। अभी 7 दिन पहले, मतलब 5 डेज पहले, IIT बीटा ने भी, IIT पटना ने भी रोड सेफ्टी पर काम किया था। तो आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी फर्स्ट हैंड नॉलेज चाहिए। कोई भी ऐसा सर्वे करना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको कुछ लीडिंग क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको ज़रूर प्रेजेंट करने चाहिए। तो बस यही सब बातें थी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो हम लोग ले लेंगे, अदरवाइज आई वुड लाइक टू थैंक CIMP and whole family and all the students for inviting me. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful words. We now embark on the much-awaited journey of Udbhav, a celebration of culture, creativity, and artistic brilliance. Now, there will be a welcome performance by Mayank. So, give him a big round of applause. Hello, everyone. ऐसा कहा जाता है कि it is the easiest way
डिप्रेशन से बाहर कर सकती है या फिर आपके बुरे से बुरे मूड से लड़ सकती है। और एक श्लोक है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्वम संगीत मुच्यते। इसलिए यहाँ पर गाना, बजाना और नृत्य तीनों का समावेश जब होता है तभी संगीत पूर्ण होता है। इसलिए मैंने चूज़ किया कि भाई डांस तो साथ में नहीं कर सकते, तो गाना और बजाना कम से कम एक साथ कर लेते हैं। सो रेडी एवरीवन? सो आगे बढ़ते हैं। आप सबको रागों की दुनिया में लेकर चलते हैं। किसी एक राग को नहीं गाएंगे, 2-3 राग को गाएंगे और सबसे घूमते हुए अंत में एक राग है राग खमाज, जिसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश है मोरा सैया, जो शफकत अमानत अली साहब ने कभी गाया था। आज तो लगभग हर सिंगर का सपना होता है कि मोरा सैया एक बार परफॉर्म करे एटलीस्ट। तो शुरू करते हैं। रे पा मा ग रे ग ने सा रे ग प द सा द प ग रे ग ने द नि रे सा। गाते हुए अलग अलग रागों का नाम बीच में लूँगा ताकि राग बदलने से फील कैसे चेंज होता है इसका अनुभव आप सब कर पाए। So, starting with Rag Bhopali. जब से तुम संग लागले, जब से तुम संग लागले, प्रीत नवेली प्यारे बलमा मोरे, जब से तुम संग लागली। यमन मोहे पिया बिन कल नाही आए, मोहे पिया बिन कल नाही आए, अब कैसे धीर धरूं मन में, मोरे पिया बिन कल नाही आए। मल्हार जा जा रे बदरा जा रे जा जा रे बदरा जा रे, बरस बरस काहे तरसाए, हमारी प्रीत तो जान ना पाए, अब घर ना सजना रे, जा जा रे बदरा जा रे जा जा रे बदरा जा रे। समरे पा म प नि ध सा नि सा नि प म प नि ग म ग, जा जा रे बदरा जा रे जा जा रे बदरा जा रे जा। जा जा रे बदरा जा रे जा जा रे बदरा जा रे। राग खमाज, और ये आखिरी राग है, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। सावन भी तो चाहे बिहरवा,
सावन पे तो जाए बिहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। एक रिप्राइज वर्जन का इसमें लाइन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे। अब हम ना होंगे तो बिहरवा, जब हम ना होंगे तो बिहरवा, बोलो क्या तुम आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर लाख जतन कर हार गए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। With the successful completion of the inaugural ceremony, now I request Professor Dr. Rana Singh sir to present memento to Mr. Sanjay Kumar Agrawal sir. Everyone please give a big round of applause. We'll be starting with the singing competition. B quiz, those participants who have participated in B quiz can go to examination hall. For B plan, FPM, photography will start soon so they can coordinate with their coordinators. And singing and dancing participants have to remain here itself. Thank you. Warm welcome to everyone present here. It is with immense joy and enthusiasm that we gather today at the esteemed Chandragupta Institute of Management, Patna, to witness a spectacular display of Udbhav, a musical talent. This event is not just a competition, but a celebration of melody, rhythm, and artistic expression. Indeed, music has the power to transcend the boundaries, connect souls, and create moments that lingers forever. So, we bring to you an extraordinary platform where our talented participants will enroll us with their vocal powers, passion, and creativity. So fasten your seatbelts as we embark on the melodious journey. Before we proceed, let us take a moment to introduce our esteemed panel of judges, Professor Samantha sir and Professor Rajiv Ranjan sir, whose expertise and discerning ears will help us recognize the best among the best today. Their invaluable experience and deep understanding of music will guide us in selecting the most deserving performers. So our judges will be evaluating each performance based on the vocal quality, rhythm, stage presence, and overall impact. We extend our gratitude to them for being with us today and lending their expertise to this event. Thank you, sir. A quick reminder to all our participants. Participants will have a total of 3 minutes of maximum time for performance. Any exceeding of time will lead to deductions. So,
let's ensure we stay within the given time limit. The competition is divided into 2 rounds. Round 1 allows instrument and backing tracks, while the final round, only live singing is permitted. To adhere the decorum of the stage, explicit or offensive content is strictly prohibited. We encourage everyone to bring their best and most authentic selves to the stage, please. Now, without further ado, let's begin the extraordinary musical extravaganza. Let's kick this event with our first performer of the day, Aditi and Pranjali Narayan, who will be setting the tone for today's competition with their mesmerizing voice. Give them a huge round of applause. Medha Ranjan. Introduce yourself first. If you need any karaoke support, give it to our technical team. Okay, and you will be given 3 minutes to showcase your performance. And beyond 3 minutes, if we allow only. Okay. So we may ask something after your performance. So wait for it. Don't go away after your performance. I'm from Elite Mishra Institute and I'm going to be singing Moh Moh Ke Dhage. Okay, please switch off the karaoke and please sing for 2 lines of Antara. Tu ho gazra pagal se. Okay, without karaoke. तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना
कैसे तूने कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। थैंक यू सर। What an amazing performance by Medha Rajans. Captivated us with her voice, was truly remarkable. A big round of applause for her.